I'm in front of you, and today the thing which I'm going to discuss in today's tutorial, that will be difference among sentence, clause and phrase. These are really very important dimensions to get information about. If you do not have knowledge about these things, it will become quite difficult for you people just to be a good student of syntax. एक्चुअली इस वक्त जो मैं और आप डिस्कस करने जा रहे हैं और ग्रामर की जिस टाइप पर मैं और आप डिस्कशन करेंगे या जिसके अंदर मैं और आप हैं, ये है सिंटैक्स. सिंटैक्स इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ये ग्रामर की वो टाइप है जिसमें आप सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं. इट हैज़ टू डायरेक्शंस. पहले डायरेक्शन में यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट सेंटेंसेस, कि पहले आप सेंटेंसेस की नॉलेज लेते हैं जो कि अपनी ज़ात में बहुत वास्ट लेक्चर, और दूसरी जब आप उसे समझ लेते हैं देन यू कम टूवर्ड्स क्लॉजेस, फिर आप क्लॉजेस को समझते हैं. लेकिन विदाउट गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेंटेंसेस इट इज़ यूजलेस टू गो टूवर्ड्स द वैली ऑफ क्लॉजेस. तो आइए वन बाय वन विल हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स. पहले मैं लेकर चलता हूँ बच्चों आपको सेंटेंस की तरफ. सो वेरी फर्स्ट थिंग विल बी पिकिंग टुडे, दैट इज सेंटेंस. So very easy, an old thing which you may have knowledge about. It's a combination of subject and predicate, semicolon. It always gives complete and clear meaning. Respected students, you need to keep one thing in your mind, and that is there will be different elements which will play a very important role in the formation of a sentences. But two things you need to keep in your mind to form a sentence, and the very first is subject and the second is predicate. If any sentence is containing these two things, you will definitely be calling that piece of sentence a sentence. And in other words, if a combination of word gives you complete and clear meaning and it contains two important elements, subject and predicate, that is called sentence. For example, जहां आपने बेटा सेंटेंस का टाइटल लगाया, इसका मतलब ये है कि उसमें ये दो चीज़ें भी होनी चाहिए और सेंसेस भी उसके पूरे कंप्लीट होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग. सो जस्ट सी व्हाट इज सब्जेक्ट? आई, and rest of the sentence is predicate. ठीक हो गया बेटा? This is an old thing. If you know, we have a very detailed lecture about that. एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा बेटे. They played well. So just see, this is your subject and the rest of the sentence is called predicate. But first, one thing you need to keep in your mind before starting or getting information about clauses, there are different types of sentences. For example, declarative, interrogative, emphatic, optative, imperative sentences, exclamatory sentences, so on. I'm not going to talk about that. Today, I'm simply giving you information about just a shape of a sentence. But in the coming tutorials, we will definitely come across the types of sentences too. Now our focal point is the difference among these things, and two things will be definitely in front of each other. I mean vis-a-vis, आमने सामने जो होती हैं वो है clause और sentence. अक्सर बच्चे वहाँ पे confuse हो जाते हैं. So sentence
मैंने तो 2 एग्जांपल्स लिखी, लेकिन अगर मैं उसकी किसी भी टाइप से कोई एग्जांपल उठाऊं तो डेफिनेटली वो सेंटेंस के अंदर फिट हो सकती है. फॉर एग्जांपल मैं इंपेरेटिव की भी एग्जांपल दे सकता हूं, मैं एक्सक्लेमेटरी की भी एग्जांपल दे सकता हूं, मैं ऑप्टेटिव की भी एग्जांपल दे सकता हूं. यहाँ तक आई होप सेंटेंस का लेक्चर क्लियर है. अब आते हैं बेटे द इम्पॉर्टेंट थिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज क्लॉज. क्लॉज का अगर बात किया जाए तो बेटे इसका जो मतलब होता है बेसिकली इसको कहते हैं पीस, पार्ट. अब ये क्या वाला है, लेट मी एक्सप्लेन इट. इट इज ए combination of subject, which forms a sentence or part of now. Respected students, I am trying to make this definition a bit easier for you people. देखिए, I will talk about this thing in detail. One more definition just to make my lecture a bit understandable or more convenient. I mean, it is a combination of subject and predicate. Sometimes it gives complete meaning by itself, and sometimes it doesn't. Now, respectable students, keep one thing in your mind. When I was talking about sentence, so I was of the opinion that it will always be complete within itself. There won't be any sort of deficiency in its meaning. But the moment I started the lecture of clause, now I am adopting some other attitude and some other definition or way. I said it's a combination of subject and predicate. One thing is missing, subject and predicate. यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है. It is also containing the same elements, subject and predicate, which forms a sentence or a part of sentence. So it is proved that clause is that part of sentence which is attached to any other clause to make the meaning understandable. You might have gone through complex sentence. आपको अगर किसी ने पढ़ा, जिसे हम कहते हैं the classification of sentences, अगर आपने कभी पढ़ी हो, जिसमें आप कहते हैं complex sentence is the sentence in which we have one dependent and one independent clause. एक dependent होता है और एक independent clause होता है. हम उसे क्या कहते हैं? Complex sentence. तो बेटे ये जो आप क्लॉजेस की स्टडी करते हैं, ज़्यादातर एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. ये कॉम्बिनेशन जो पूरी होती है ना, इसको आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो क्लॉज की डेफिनेशन जो हायर और स्टैंडर्ड लेवल की, वो यही कहती है आप किसी भी जुमले को उस वक्त तक क्लॉज नहीं कह सकते जब तक कि किसी और क्लॉज के साथ अटैच ना हो. क्यों? जब तक कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की शेप ना बनाए. लेकिन बेटा आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग डिस्कस करूंगा. मैं उस बात को मान भी रहा हूँ, मैं उस ट्रेडिशन पे चल भी रहा हूँ. मैं यही कह रहा हूँ कि क्लॉज इज जस्ट लाइक अ सेंटेंस, इट आल्सो कीप्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. लेकिन मैंने अलग बात जो की, समटाइम्स इट गिव्स कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग एंड समटाइम्स इट डज नॉट गिव कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग. अब बात ये पैदा होती है बेटे, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि अगर मैं कहूँ मेरे एक ही सेंटेंस में ये दोनों बातें आपको मानना पड़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ शी क्लीन्ड द रूम.
अब मैं कहता हूं इट इज गिविंग कंप्लीट एंड क्लियर सेंस, बच्चे कहते हैं यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन द नेक्स्ट मूवमेंट आई से एक्सेप्ट दैट इट्स नॉट गिविंग कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग, फॉर माई रिस्पेक्ट एंड ऑनर यू मे से हो सकता है सर ठीक ही कह रहे हैं सर, लेकिन दिल ये कह रहा है कि सर गलत कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, जुमला तो पूरा ये मतलब कम तो नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट टू प्रूव द डेफिनेशन ऑफ अ क्लॉज बाय वन एग्जांपल यू कैन नॉट गो थ्रू, यू कैन नॉट जस्टिफाई इट। सो इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन, मतलब इसका भी यही निकलता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन क्लास इज सपोज टू बी डिस्कस्ड इन द शेड और इन द अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। और वो कौन सी दो टाइप्स हैं ये मिटा दूं इफ यू हैव गॉन थ्रू। अच्छा जी बेटे, इस डेफिनेशन के हिसाब से जो क्लॉज है इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इधर आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ क्लॉज। देखिए बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन clauses are of two types. Number one, independent clause. Which clause? Independent clause. And number two, dependent clause. Is it okay? देखिए आपने खुद कहा, just try to understand. Sometimes it gives complete and clear meaning. ठीक हो गया? Sometimes it does not give complete and clear meaning. So if it is giving complete and clear meaning, we will be discussing this type. And sometimes it does not give complete and clear meaning, then we'll be discussing this one. And it is said that अब जब आप इन दोनों को समझ लोगे, then you will definitely realize that to understand the clauses, you need to understand the complex sentence too. कि ये दोनों क्लॉजेस साथ ही चलते हैं, अलग अलग नहीं चलाए जा सकते। अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस की मिसाल ले रहे हैं, अगर आप इफ आई गो टू स्कूल, अब यहाँ पे आप चुप नहीं हो सकते, क्यों? अनलेस एंड अनटिल यू मेंशन द इंडिपेंडेंट क्लॉज द मीनिंग विल नॉट बी क्लियर। तो इसका मतलब जो ग्रामर में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो टाइप रखी गई है वो क्लॉजेस की सारी स्टडीज के अंदर ही होती है। ठीक है बेटे? अच्छा मैं अब आगे बढ़ता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू पिक द वेरी फर्स्ट टाइप। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? Independent clause. Now try to have some more attention. थोड़ी और तवज्जो चाहिए होगी बेटे। It is a combination of subject and predicate. Very first thing, just like a sentence, it has subject and predicate. और अगली बात, it forms a sentence by itself It forms a sentence by itself. इसका मतलब ये हुआ, it means, आसान कर देता हूं, it means it doesn't depend on other clause. It doesn't depend on other clause. अच्छा बेटे देखिए, almost what I wrote in the definition of a sentence, if you try to compare this definition, there is sort of affinity, similarity, they are alike, एक जैसे दिख रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, if you keep that statement in your mind, आप एक नोट बना लें, if you have this statement in your mind, you can satisfy rest of the people too. अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो बहुत से लोग आपको आपके लेक्चर में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू गाइड समबडी, दैट पर्सन मे ट्रैप यू, वो आपको आपकी बात में फंसा सकता है। तो यार अभी तो तुम सेंटेंस में ही मिसाल दे रहे थे, अब तुम क्लास पे भी वही मिसाल दे रहे हो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मैं बता देता हूं, एक स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एवरी सेंटेंस कैन बी a clause
Every sentence can be a clause, but every clause cannot be a तो साबित ये हुआ बेटे, according to the grammarian, they are of the opinion that every that sentence which is fulfilling the characteristics and prerequisites of the definition of an independent clause that can be written under the definition or justification of an independent clause. और justification क्या है? Every sentence can be a clause on condition that it fulfills the requirement of the definition. अगर जो तारीफ आपने लिखी, अगर कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस, अगर वो इस डेफिनेशन के मद्दे मुकाबिल या इसकी तमाम तर खसूसियात करैक्टरिस्टिक्स को पूरा करे, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं यस दिस इज अ क्लॉज टू. अब वो बोले यार पहले सेंटेंस कह रहे थे आप क्लॉज, आप स्टेटमेंट कह दीजिए एवरी सेंटेंस कैन बी अ क्लॉज इफ इट इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बट एवरी क्लॉज कैन नॉट बी अ सेंटेंस. ये तो मुमकिन है कि बहुत सारे जुमले क्लॉज के किसी ना किसी डेफिनेशन के अंदर या टाइप में फिट होंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि क्लॉज सेंटेंस की हर टाइप के अंदर फिट होकर आपको दिखाएं. अब मैं चलता हूं अपनी एग्जांपल्स की जानिब. इफ यू अलाउ मी, मैं आई रेज दैट साइट. लिख चुके हैं बेटा? अच्छा देखिएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल, you need to, first of all, you need to check it. They will help us. Is there any deficiency? कोई कमी है इसमें? नहीं. आप जरा उस डेफिनेशन को एक दफा पढ़िएगा बेटे, कोई भी पढ़ ले, इसे पढ़िए जरा. It's a combination of subject and predicate. It forms a sentence by itself. It means it doesn't depend on other clause. अगर मैं देखूं बेटे, पहली चीज, it has subject and predicate. Does it have? Yes. अच्छा, it forms a sentence by itself. ये खुद से जुमला बना रहा है, बना लिया. It means without the help of any other clause, it is complete by itself. अब आप कहते हैं सर, मैं अगर पूछूं बेटा, would you mind telling me which type of sentence is it? ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है? तो आप यही कहेंगे assertive, declarative, affirmative, simple sentence, so on. अब ये बात मानने वाली है. अगर मैं ये कहूं फॉर एग्जाम्पल declarative sentence it is, लेकिन बेटे I am not going to write down declarative sentence. Why? Because it is fulfilling the characteristics of an independent clause. So right now I'm compelled to change the title declarative independent clause. Why? Can you tell me why? Every sentence can be a clause. Every sentence can be a clause. Why? Because if I read this sentence and I read this definition and I bring these two things in front of each other, believe in me, they are according to each other. What this definition says, this sentence is fulfilling that. But right now I'm not going to call it a sentence. हाँ, आप मेरी इस बात को दोबारा सामने ला सकते हैं कि सर आपने तो ये कहा कि इसको अटैच करें तो ये क्लॉज बनता है. मैं बिल्कुल मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने दोनों क्लॉजेस को अलग अलग रख के समझाना है. लेकिन जब मैं आपको क्लॉज पढ़ाऊंगा तो मैं अलग नहीं पढ़ाऊंगा. दे विल बी अटैच्ड. व्हाई? बिकॉज क्लॉजेस आर सपोज टू बी डिस्कस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर इसे डिस्कस करना पड़ेगा. समझ आ गई? तो क्लॉज का क्या मतलब है? क्लॉज जब जुड़ेंगे एक दूसरे से तो क्लॉजेस की स्टडी में आएंगे. अगर आप अलग करेंगे तो डेफिनेटली वापस आप सेंटेंसेस पे चले जाएंगे. एक और मिसाल लीजिए बेटे. Does she teach you? कौन सा सेंटेंस है बेटे? कैन यू टेल मी व्हिच सेंटेंस इज दिस? अच्छा जी, प्रेडिकेट, शैटर्ड प्रेडिकेट है, कुछ पार्ट ये भी प्रेडिकेट का हिस्सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई से डू यू लाइक कुकिंग. आपने जवाब दिया डू यू प्ले क्रिकेट. जवाब क्या होगा इसका? डू यू प्ले क्रिकेट. आप यही कहोगे ना, नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट और आई प्ले क्रिकेट. ओके. आर यू लर्निंग इन द एकेडमी. यस. जवाब क्यों दिया? अगर ये पूरा ना होता तो जवाब भी ना आता.
सवाल पूरा था तो जवाब दिया ना। अगर मैं इतना कह के शुरू करता हूँ आर यू, कहते सर प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस, आर यू व्हाट, तो मैं कहता आर यू एंजॉइंग, अब आप जवाब दोगे, लेकिन आर पे जवाब नहीं दिया, यू पे जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज किया दैट इज स्टैंडिंग लाइक अ कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ। और डेफिनेशन क्या कहती है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट व्हिच फॉर्म्स अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर क्लॉज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो क्या इस वक्त बेटे मैं इसको कह सकता हूं इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव इंडिपेंडेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो इंडिपेंडेंट को, इंडिपेंडेंट क्लॉज। कहता है भाई ये क्लॉज कैसे हो गया? आप स्टेटमेंट पढ़ दें, एवरी सेंटेंस कैन बी अ क्लॉज इफ इट इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सम पर्टिकुलर डेफिनेशन। आप इस डेफिनेशन को पढ़ें और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ें। अगर मैं कहता क्या तुम, उर्दू में सुन लो, क्या तुम, कहते सर क्या तुम से मुराद, आपकी बात पूरी नहीं है, मतलब क्या तुम नमाज पढ़ते हो? अभी आप जाइए, जी हाँ। आपने जवाब क्यों दिया? क्योंकि मेरा सवाल पूरा था। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज अपनी जात में सेंटेंस की तरह पूरा होता है। हाँ, क्लॉज ये उस वक्त कहलाएगा जब मैं इसको डिपेंडेंट के साथ जोड़ दूंगा तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्टडी में आ जाएंगे और क्लॉजेस को डिस्कस ही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में किया जाता है। इसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो कर दे तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक का मसला। एक और मिसाल लें, आपने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं जिसको उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू शो ऑर्डर, कमांड, इनविटेशन, ऑफर, रिक्वेस्ट, सजेशन, सो ऑन। इसके कुछ रूल हैं। उसके रूल क्या हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्टार्ट किससे होते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे गो आउट, सिट डाउन, नोट डाउन। आपकी क्लास में तो टीचर अक्सर ऐसे ही कर रहे होते हैं। ओपन योर बुक्स, आपको मुखातिब ही नहीं करते। रूल क्या है? The one who talks is first person, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। The one who listens is a second person, one person और 1 lakh, एक हो या 1 करोड़ हो, सुनने वाले क्या होते हैं भाई? यू। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस ये कहता है कि इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस यू इज नॉट मेंशन्ड बट अंडरस्टूड। मेंशन नहीं करते लेकिन अंडरस्टूड पहले से है वो। फॉर एग्जाम्पल बेटे, मैं अपनी बात क्यों सपोर्ट करवाना चाह रहा हूं, मैंने लिख दिया यू को ब्रैकेट में, किसमें? लिखा नहीं जाता लेकिन आपके लिए जान के डाला। अगर मैंने डालता, पता है क्या सवाल करते? गो आउट, फुल स्टॉप से स्टैंड होता है। मैं अगर ये ना लिखता ना, मैं कहता गो आउट, कहते सर आपने तो कहा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आपका सब्जेक्ट तो है नहीं, आप गलत पढ़ा रहे। तो इसलिए कि वो सवाल करते, मैंने पहले से दरवाजे को लॉक लगा के अच्छी तरह रस्सियां बांध दी, अब सवाल नहीं करना। क्यों? इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई बच्चा बहुत सियाना बनता है, कहता है नहीं सर इसमें तो हम नाम भी ले सकते हैं। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल नाम ले सकते हैं। अगर एक ही क्लास में 2 अली बैठे हुए, 2 अहमद बैठे हुए, तो जैसे मैं कहता हूँ अली गो आउट, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर बंदे को उठाना है ना क्लास में, अगर सबको कहना है नोट डाउन, अगर सबको कहता हूँ लीव माई क्लास, तो सारे उठेंगे, सारे चले जाएंगे क्योंकि आप सब यू हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूँ उसामा गो आउट, अब उसामा जाएगा, सारी क्लास जाएगी। तो जब मैंने पर्टिकुलर किसी को स्पेसिफाई करना होता है तब नाम भी ले सकते हैं इंपेरेटिव, लेकिन 90% यू ही सब्जेक्ट है, मेंशन नहीं किया जाता। अब इस सेंटेंस के अंदर बेटी क्या है? यू सब्जेक्ट है विच इज नॉट मेंशन, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। अगर मैं किसी बच्चे को कहूं डोंट शाउट, नोट डाउन माई लेक्चर, इसने क्यों मेरी बात मानी? मेरी बात पूरी थी ना, मेरे ऑर्डर में कमी नहीं थी, इसलिए इसने लिखना शुरू किया। अगर मैं किसी बच्चे को कहता गो आउट, मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ गो आउट, तो बच्चा समझता है इसलिए मैं सर गुस्से में आ गए, तो वो ऐसे ही ऐसे देखते थे पता नहीं क्या गलती हुई है, तो मैं इसको रोक लेता हूँ, बेटा प्लीज स्टॉप, व्हाई आई जस्ट वांटेड टू जस्टिफाई माय डेफिनेशन। इंपेरेटिव में यही होता है क्योंकि आप इस डेफिनेशन में ये कह रहे हैं बात पूरी है, इसमें कमी कोई नहीं होती। कमी नहीं थी ना तो बच्चा उठ के इसने लिखना शुरू कर दिया, बच्ची उठ के बाहर चली गई। सो इट मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो कंप्लीट इन देमसेल्व्स, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, 2 चीजें मिल गई बेटा। अब इस वक्त ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है? इट इज imperative sentence, but I'm not going to write down sentence. I'm going to write down imperative independent clause. Why? Because every sentence can be a clause, but every clause cannot be a sentence. Ibrahim, getting my point? Is it okay? Afra? Clear? Okay. एक मिसाल और दूं बेटा. For example, do you know something about exclamatory sentences? Hurrah! We won the match. कौन से सेंटेंस होते हैं ये जरा कोई डिफाइन करेगा? एक्सक्लेमेटरी होते क्या हैं? दैट इज द पॉइंट।
Exclamatory sentences are those sentences which are introduced by interjections and they are used to express sudden feelings of happiness, sorrow, surprise, pain, hatred, so on. जो आपके एकदम से खुशी के, गम के, दुख के, हैरानगी के एहसासात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हों. इंट्रोड्यूस ये होते हैं इंटरजेक्शन से, लेकिन WH वर्ड से भी इंट्रोड्यूस होते हैं. वटाकार, अब वॉट आकार, क्या गाड़ी है. उर्दू में तो हमारी बातें ऐसी होती हैं. लेकिन इस पर एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आसान बात रखी. बेटे ये कौन सा सेंटेंस है, अगर मैं ये ना लगाता ना तो आप कहते सर इंटरजेक्शन नहीं लगाया, ये कौन सा है, तो आप कहते हैं तो सिंपल सेंटेंस है. लेकिन मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूँ, इवन अ सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वो कैसे, जुमला देखना, वी हैव वॉन द मैच. कोई फीलिंग थी इसमें, चेंज कर दूं, वैसे तो सिंपल सेंटेंस है ना, डिक्लेरेटिव, वी हैव वॉन द मैच. आवाज बदल गई, तासुरात बदल गए, एक्सक्लेमेटरी हो गया. जहां तासुरात आ गए, जोश आ गया, वलवला आ गया, अ सिंपल सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेमेटरी. सिर्फ सिंपल की बात नहीं कर रहा हूं, एवरी सेंटेंस इन ग्रामर कैन बी चेंज्ड इनटू एक्सक्लेमेटरी. अगर आपको यकीन नहीं आता, ट्राई टू ओपन द ओल्ड नॉवेल्स, योर स्टोरी बुक्स, उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगे होते हैं सादा जुमलों के आखिर. इसका मतलब वो क्या कह रहा था राइटर, जरा ऊंची आवाज में पढ़ो, इसमें एक्सक्लेमेशन मौजूद है. आखिरी बात करता हूं बेटे, सो ये क्या है, इंटरजेक्शन. ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका प्रेडिकेट, ठीक है बेटे. एंड कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. लेकिन इस वक्त मैं इसको क्या कहूंगा, एक्सक्लेमेटरी इंडिपेंडेंट clause. Why? Every sentence can be a clause, but every clause cannot be a sentence. I hope this lecture is clear. Even if you have some problem, I'm always here. You can comment me. You can talk to me. Inshallah, I will clarify. This lecture is not completed within itself because so many things are attached with this lecture. If you understand it, later on lectures will become quite easy for you people. Please keep on watching my videos. Subscribe to my channel. Like my videos. And I will keep on bringing such informative videos for my students. Inshallah. Thank you for today. Allah Hafiz.